پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو شاہ صاحب، خان صاحب کا بیان حلفی غلط قرار دیا گیا. ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق کچھ کمپنیز کے نام سامنے آئے جن سے پی ٹی آئی نے لیا. ممنوعہ فنڈنگ میں ملوث ہے پی ٹی آئی. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا اب سامنے آیا ہے. عدالت جا رہے ہیں آپ اس کے خلاف؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے کہ ہمارا موقف درست ثابت ہوا کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے. یہ کئی سالوں سے ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے اور بڑے بڑے الزامات لگ رہے تھے، ثابت ہو گیا فورن فنڈنگ نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جہاں تک خان صاحب کا انہوں نے کہا ہے، خان صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس پہ جو ان کے ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو اے کلاس آڈیٹڈ فرمز، وہ ان کو ویریفائی کرتی ہیں، ان کو آڈٹ کرتی ہیں. اس کی رپورٹ جب پیش کی جاتی ہے اس کی بیس پر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ایسے از خود انہوں نے نہیں کر لیتے. نمبر تین، جو ان کی کچھ آبزرویشنز ہیں ہم ان کا مفصل جواب دیں گے، اور کئی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں اعتراضات ہیں ہم اسے چیلنج کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن نے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا. ہم سے جو مانگا ہم نے دے دیا، تفصیلات دے دی اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا. جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا. ہم کہہ رہے ہیں ان کے بھی حساب مانگے نا. یہ جو اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے، جو لیبیا سے فنڈ دیتے رہے، ذرا ان کا بھی احتساب کیجیے. ہم تو جس کسوٹی پہ آپ نے ہمیں پرکھا ہم اس پر اترے اور الحمدللہ ہم نے آپ کو مطمئن کیا. باقی آپ کے جو آبزرویشنز ہیں ہم جواب دیں گے، بالکل جواب دیں گے. آپ نے شو کوٹس نوٹس دیا اس کا بھی جواب دیں گے. عدالت میں بھی جائیں گے، بالکل جائیں گے، ڈیٹیل ججمنٹ کو دیکھنے کے بعد. شاہ صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل نقطہ ان کا یہ ہے کہ غلط بیان حلفی جس کو کہا گیا فیصلے میں اس کو بنیاد بنا کر عدالت جایا جائے اور نااہلی کے حوالے سے بات کی جائے؟ حکومت کا یہ ہے اصل مقصد؟ دیکھیے، ان کی تو بہت سی خواہشات تھی نا. وہ خواہشات تو آج کچھ خواہشات دم توڑ گئیں. ان کی خواہش تو تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، ڈی رجسٹر ہو جائے، یہ پارٹی ممنوع ہو جائے، اس پہ پابندی لگ جائے. یہ ان کی خواہش تھی. اللہ کے فضل و کرم سے نہ پوری ہونی تھی، نہ پوری ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ پوری ہوگی. ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب پر وہ مختلف انداز میں کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن منہ کی کھانی پڑی. یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور انشاءاللہ بالکل چاہے عدالت میں ہم جواب دیں گے. انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے. شاہ صاحب، یہ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کے سپرد یہ معاملہ کرنا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ وفاقی حکومت میکسیمم کیا کارروائی کر سکتی ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیے، وفاقی حکومت تو آپ جانتے ہیں، وفاقی حکومت کے ہماری پی ٹی آئی کے متعلق جو ویوز ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ تو متعصب ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ تو اس سارے مقدمے کے فریق ہیں. تو ان سے کوئی اچھائی کی توقع کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی اچھائی کی توقع ہونی چاہیے. لیکن جو وہ قدم اٹھائیں گے ہم اپنا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. سیاسی اور قانونی طریقے سے اپنا دفاع کریں گے. شاہ صاحب، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں، کیسے دباؤ ڈالا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ استعفیٰ دیں؟ دیکھیے، ایک اخلاقی جو ہوتے ہیں نا قاعدے بھی ہوتے ہیں. اب اس وقت پنجاب کی ایک منتخب اسمبلی ہے، اس نے ایک قرارداد پاس کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی غیر جانبداری پر شک ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد پاس کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں. اب اگر آپ دونوں صوبوں کی پاپولیشن کو لے لیں، اگر آپ اس میں چاہیں تو گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی رائے لے لیں، آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی رائے لے لیں، تو پاکستان کی آبادی کی واضح اکثریت ان کی غیر جانبداری پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے. اب ان حالات میں وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں، تو وہ انتخابات کو متنازع بنا دیں گے. اب
मुल्क के मफाद में, इदारे के मफाद में यही है कि वो मुस्तफी हो जाएं और रास्ता बनाएं एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का जो वाकईतन फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने की अहलियत रखता हो। अच्छा सर, ये ज़ाहिर है ज़रा इस पर भी हम रहेंगे, ये जो ममनुआ फंडिंग वाला सारा मामला है सर, जो शीट आई है किसी ने $50 दिए हैं सर, किसी ने $1000 दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जिस तरह आपने शुरू में कहा कि पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का भी है, इस पर क्यों नहीं फैसला सुनाया गया? आपको लगता है टाइमिंग गलत है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की? बिल्कुल, टाइमिंग तो बड़ी चुन के की गई है ना। आप देखें ना, टाइमिंग तो बहुत सी चीजों की बड़ी मानेखेज दिखाई दे रही है और ये वक्त साबित करेगा कि इंशाअल्लाह हमें मुख्तलिफ आजमाइश से गुजारा गया। हमारी नीयत, हमारा दामन साफ है और अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सुरखरू किया है, अवाम की निगाह में सुरखरू किया है, इंशाअल्लाह आइंदा भी होगा। और हमने जुमेरात के रोज हमने कहा है लोगों से कि वो अपनी जज्बात का इजहार करें और एक पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है कि ये इलेक्शन कमीशन बराए मेहरबानी कौम पर ये एहसान करे और रास्ता बनाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनकी आपको पता है कि एक रीजनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूँ। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूं। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है, या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूं। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। पीडीएम की और हुकूमत की सियासी साख राख बन गई है। मैं दोबारा कहता हूं, सियासी साख राख बन गई है। आज सारे अदारे जो हैं वो कौम के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते और मुल्क जिस बहरान में मुआशी, सियासी, इक्तसादी और आलमी बहरान में गुजर रहा है, और अभी जो हमारे पड़ोस में रात को वाकया हुआ है, उसके बाद जो खतरात और खदशात है, ऐसे आलम में किसी मकबूल और मजबूत लीडर के साथ खामखा पंगा लेना कोई मुल्क की खिदमत नहीं है। सर, आपको लगता है कि पंगा लिया पंगा ही आपको लग रहा है ये फैसला, आप इसको पंगे से कर रहे हैं? मैं आज इसको पीटीआई और इमरान खान के लिए फतह का दिन करार देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा, देखा जाएगा, उस वक्त तक हालात किस जगह होंगे और मामलात जैसे दुनिया के बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बिगड़ रहे हैं। मुल्क पहले है, बाकी सारे सियासतदान बाद में है। सबसे पहले मुल्क को बचाना है। मुल्क की जो साख है, मुल्क के जो दुनिया में मुल्क तबाह हुए, बर्बाद हुए, टूटे, वो मईशत की वजह से हुए और मईशत शदीद बहरान में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज के फैसले से कोई ऐसा बहरान नहीं पैदा होगा कि जिसे मैनेज न किया जा सकता हो। ये एक ऐसा फैसला है जो कि सुप्रीम और हाई कोर्ट पहली हेयरिंग में ही इसको उड़ा देगी और सारी सियासी पार्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए, सबके अकाउंट्स बैक वक्त देखे जाने चाहिए। अच्छा, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप तौहीन कर रहे हैं। जी, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, की तौहीन कर रहे हैं, जो $31 बिलियन भेज रहे हैं, जिनकी
साख को आप नुकसान नहीं सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा भी गैर मुल्की कंपनियों का भी मुल्की कंपनियां हैं, 351 कंपनियां हैं, गैर मुल्की शहरी हैं, अकाउंट छुपाना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। हो इसको सकता है कैसे आइन हमारा जस्टिफाई मोम करेंगे? की नाक बन चुका है, पाकिस्तान का आइन मोम की नाक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है नजरिया जरूरत पैदा हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख में जैसा खिलवाड़ आइन के साथ किया गया है वो किसी और की चीज के साथ नहीं किया गया। पाकिस्तान की तारीख में आइन को जैसा मजाक बनाया गया है दुनिया में कहीं नहीं बनाया गया। ऐसे भी मुल्क हैं जहां कोई तहरीरी आइन नहीं, लेकिन कोई माशरे के अंदर कोई बदतमीज। अरशद शरीफ साहब ने जो इसमें पॉइंट रेस किया, जो 62 के तहत आइन का आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल कराने की ये कोशिश हो सकती है, जिसकी तरफ जा रहा है रुख, सारा हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो तमाम कोशिशें हैं इमरान खान को ज़ेर करने की इन जमातों की, वो अभी तक तो कोई भी कारगर साबित नहीं हुई है। तो बचता क्या है? ये एक फैसला बचता है। एक तो इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा मैं, और उसके साथ साथ टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। कोई भी फैसला हो, चाहे वो कानूनी हो या उसके सियासी असरात हों, टाइमिंग बड़ी अहमियत होती है। जुमेरात को एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसके खिलाफ 2 असम्बलियां जो है वो करारदाद मंजूर कर चुकी हैं, और अब ये फैसला आना, आपकी राय? देखें, मैंने जब ये फैसला देखा तो मेरा उस पे इनिशियल रिएक्शन यही था कि डाई हैज बीन कास्ट। अब एक पैरामीटर बना लिया गया है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतहाई सोच समझ के बाद ये फैसला करेंगे कि इसके ऊपर मिठाई खानी है कि नहीं खानी। इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि अब इसी पैरामीटर के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स भी वेरीफाई होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, तो उसी स्टैंडर्ड के ऊपर उनको बताना पड़ेगा कि नून लीग की फंडिंग कितनी साफ और शफाफ रही, पीपल्स पार्टी ने पार्टी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए वो कहाँ से इकट्ठे किए, उसका हिसाब किताब क्या कहाँ पर है। आपको पता है कि नून लीग रसीदें पेश करने के हवाले से काफी उनको परेशानी हो जाती है। अब कहाँ से रसीदें पेश करेंगे, लिहाजा एक तो इसका जाविया ये है। दूसरा जाविया जो मैं देख रहा हूँ वो जो अरशद साहब बात कर रहे हैं, साहब हो सकता है अब भी आके शहबाज शरीफ साहब अभी आके असेंबली फ्लोर पे कह दें कि ये हैं वो जराए। अच्छा दूसरा जो इनिशियल जो रिएक्शन जो मेरी नजर में है वो ये है कि एक इमरान खान के सर के ऊपर एक तलवार लटकाई गई है। ये जो अर्शद साहब ने बात की ना कि जी उन्होंने फॉल्स डिक्लेरेशन किया है अपने पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से कि अगर इमरान खान जो है काबू में नहीं आता, अगर इमरान खान हमारी बात नहीं सुनता, अगर इमरान खान जो है हमारे तय किए हुए जो है रूल्स के मुताबिक ये सियासत का खेल नहीं खेलता, तो फिर इमरान खान को हम ये जो है ना सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी दिखाएंगे। ये तलवार है आपके सर के ऊपर, ये किसी भी वक्त आपके सर पे हम गिरा सकते हैं। लेकिन खबर साहब अभी ये सिचुएशन